A very good evening and welcome. So, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है. So with these great lines, I welcome you back to the care classes and नमस्कार. So बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, it is going to be very very interesting because we are again going to take the 10th board series for CBSE mathematics, that is triangles 1.1, and this is the chapter overview, and the session will flow as the first will be the basic proportionality theorem or the Thales theorem, the second will be corollary based on BPT, the third will be converse of BPT, and the fourth will be applications on the mentioned concepts, because the learning is incomplete without applying the concepts to the questions. That is, application is very very important. So be excited and let's start the journey. So बच्चों, जो सबसे पहला जो थ्योरम हमारा है, that is basic proportionality theorem, and the theorem states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. This means that बच्चों कि अगर हम लोग एक लाइन डी ड्रॉ किए हैं अगर पैरेलल टू बी सी और डी ई इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी पे और ए सी को ई पे, तो उस केस में क्या हो जाता है, ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है वो ए ई बाई ई सी के बराबर हो जाता है. ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट मेंशन द गिवन that D is parallel to BC, D intersects AB and AC at D and E respectively, and we have to prove that AD by DB is equal to AE by EC. So बच्चों, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा and that is BE को ज्वाइन करना पड़ेगा and CD को ज्वाइन करना पड़ेगा. Again we have to draw EL perpendicular to AB and DM perpendicular to AE. तो ये सब होने के बाद we will move on to the proof part. Okay, so in the proof part we will have to see that we have to prove that AD by DB is equal to AE by EC. Okay, so बच्चों हम लोग को लेना है AD by DB. तो AD लेने के लिए आपको ये ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, टू कंसीडर दिस ट्राइंगल. ओके, एंड DB कंसीडर करने के लिए आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास ये DB एंड AD का रेशियो आएगा. तो बच्चों हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो हम लोग आराम से यहाँ पर से एरिया निकाल सकते हैं. तो वी कैन टेक आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल area of triangle ADE is equal to half into base, that is AD, into height, that is EL. Clear? Then we will take out area of triangle DEB, that is again equal to half into base, that is DB, into again EL. So EL will get cancelled, half will get cancelled, and we will get easily area of triangle ADE by area of triangle DEB is equal to nothing but AD by DB. So this is our first part. इसको हम लोग नेम करेंगे इक्वेशन 1. सिमिलरली बच्चों हम लोग को AE by EC चाहिए, तो अगेन वी विल टेक द ट्राइंगल ADE, बिकॉज AE को बेस लेते हुए वो आ जाएगा वहाँ से, एंड EC को लेना है तो ECD लेना पड़ेगा, बिकॉज EC को बेस लें तो ECD इज अ ट्राइंगल. तो यहाँ पर से बच्चों हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to half into base, that is AE, into height, that is DM. Any doubt? तो दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ आई विल टेक ट्राइंगल DEC, so what I will find, it is equal to half into base will be EC this time, this is the base, into DM
this dm should be written a little more clear. This is dm, and I will send the icon somewhere other side, and this dm will get cancelled, half will get cancelled, and we will get the next equation. Area of triangle ADE by area of triangle DEC is nothing but it is AE by AC. सो बच्चों हमें यहाँ तक तो मिल गया ये पार्ट, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। तो दोनों को गौर से देखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यू विल गेट सम सिमिलरिटी। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में आपका ADE है, यहाँ भी ADE है, यहाँ पे DEB है, और यहाँ पे ट्राइंगल DEC है। और आपको जो प्रूफ करना है दोनों राइट साइड में अवेलेबल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो किसी तरह बच्चों अगर आपका डिनोमिनेटर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वेशन 1 का एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के बराबर हो जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और DEC को कैसे प्रूफ करें। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये है बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, और बच्चों ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। बच्चों ये दोनों आप दिमाग में रखिए कि दीज टू आर द पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल है और DE भी पैरेलल है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का बेस दोनों कॉमन है। व्हाट इज़ द बेस? द बेस इज़ DE। DE आपका इसमें भी है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। और बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग सा थ्योरम है, अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लेट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने XY, ओके, मैं फिर से इसे इरेज करके मैं क्लियर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो मैं क्या बोला कि अब जैसे मैं आप लोग समझ गए ये ट्राइंगल लेना है और ये ट्राइंगल लेना है, तो एक परपेंडिकुलर जैसे हमने ड्रॉ किया यहाँ पे XY, तो ये XY क्या रहेगा, DEB के लिए भी परपेंडिकुलर रहेगा और DEC के लिए भी परपेंडिकुलर रहेगा। सिंपल सा फैक्ट, ओके। तो जब ऐसा होता है बच्चों, मतलब ये इस टाइप का चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे देख लो, मैं इसका अलग से फिगर बना दे रहा हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ। लेट्स से BC आपका मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और B के जस्ट साइड में D है, यहाँ पे आपका E है, और ये दोनों लाइन कैसा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो जैसे दोनों को ज्वाइन करूँगा, लेट्स से इसको ज्वाइन कर दिया ये डॉटेड लाइन के थ्रू, और फिर मैंने इसको ज्वाइन किया अगेन ये डॉटेड लाइन के थ्रू। तो यही दोनों ट्राइंगल है आपका। देखो बच्चा, इनका बेस तो कॉमन है, तो जैसे अगर इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए भी सेम लेंथ होगा, इस ट्राइंगल के लिए भी सेम लेंथ होगा। मतलब कभी भी जब दो पैरेलल लाइन होता है बच्चों, तो अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हो, अगर AB परपेंडिकुलर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर दूसरा परपेंडिकुलर CD है तो ये उसके बराबर हो जाएगा, और तीसरा परपेंडिकुलर अगर EF है तो ये आपस में तीनों के तीनों इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में जो हम मेरा ट्राइंगल बना है, एक ट्राइंगल ऐसे करके बना है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर आपका बनेगा, लेट्स से इसको अगर बैक कर देता हूँ बेस को एक्सटेंड, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो, और इस ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों का लेंथ क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ओके, जब लेंथ इक्वल होगा परपेंडिकुलर्स का, तो एरिया भी क्या हो जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे बच्चों, तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इट इज़ नॉट ADE, इट इज़ DBE। ये क्या है, DB, इसको B बना देता हूँ, तो BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज DE, विच इज़ द कॉमन बेस, इंटू हाइट दैट इज XY। ओके, दूसरे केस में भी बच्चा अगर एरिया लूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज DEC,
तो इस केस में बच्चों क्या आ जाएगा, हाफ इंटू डी ई इंटू एक्स वाई। तो दोनों केस में बच्चों आपका ये पार्ट तो सेम आ गया, मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर हो गया। तो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फरेंस मिलता है बच्चों कि कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पर से हमको ये इन्फ्रेंस मिलता है बच्चों। तो हम लोग अब आगे मूव करते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको पूरा चीज़ क्लियर है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ वापस नेक्स्ट पार्ट में, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, टू मेक यू मोर क्लियर। तो बच्चों मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ओके, फ्रॉम थर्ड ले लेते हैं, ये आ गया। क्यों, हम लोग अभी जो थ्योरम देखे, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फ्रॉम लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो थर्ड मार्क कर दीजिए। तो 1, 2 एंड 3 को यूज़ करते हुए फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो बच्चों आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया कि कैसे हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मूव करते हैं। ओके, यहाँ आपका वो था प्रूफ कि कैसे कैसे आया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू थिंग दैट इज़ कोरोलरी। तो जो कोरोलरी मतलब क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा जो रिजल्ट्स आपके आते हैं किसी थ्योरम पे बेस्ड होके, तो उसको हम लोग कोरोलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे कोरोलरी क्या है, बीपीटी का रिजल्ट्स हमको पता है कि अगर कभी भी ऐसा आपको ट्राइंगल मिल जाता है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, तो ये फ्रॉम बीपीटी आ जाती है, दिस कम्स फ्रॉम बीपीटी। अब बच्चों जैसे हम लोग एडिंग 1 कर देंगे बोथ साइड्स में, देखो बच्चों बहुत क्लियर सा बात है। देखो डी बी यहाँ भी है, डी बी यहाँ भी है, ई सी यहाँ, ए सी यहाँ, बस ऊपर में आपका ये ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ए डी प्लस डी बी अगर हो जाए, ए डी प्लस डी बी हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। तो हम लोग एडिंग 1 कर देते हैं। तो एडिंग 1 मतलब ए डी बाई डी बी प्लस 1, दिस इम्प्लाइज का साइन बिल्कुल मत भूलना बच्चों, ए ई बाई ई सी प्लस 1। तो ये कम्प्लीटली आपका आ जाएगा ए डी प्लस डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। एनी कन्फ्यूज़न? तो बच्चों ए डी प्लस डी बी हमने देखा था क्या बन गया, वो ए बी बन गया, और ए ई प्लस ई सी क्या बन गया बच्चों आपके लिए, ए सी बन गया। तो यहाँ पर क्या हम डायरेक्टली मूव कर जाते हैं, लिख सकते हैं ये ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो बच्चों ये आपका पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, हमको प्रूफ करना है ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ए सी। तो बच्चों इसमें सेम हम लोग वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम लोग को पता है, जब भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है, एक लाइन पैरेलल होता है किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल के, तो बीपीटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, तो दिस इज फ्रॉम बीपीटी। अगेन अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमको ए डी चाहिए लेकिन नीचे में ए बी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा रेसिप्रोकल कर देंगे। तो डी बी बाई ए डी हो गया ये, और ये हो जाएगा ई सी बाई ए ई हो जाएगा। ओके, सो आई नीड टू गेट समथिंग मोर, दैट इज, अब बच्चों इसमें अगेन हम क्या करेंगे, एडिंग 1, तो डी बी प्लस 1 दैट इज
यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ऐसे काट रहा हूँ। ये लिख सकता हूँ dB प्लस 1 dB बाई AD प्लस 1 एंड ये हो जाएगा EC बाई AE प्लस 1। जब बच्चों से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dB प्लस AD बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE बाई AE। ओके, सो बच्चों बहुत आराम से मेरा आ गया। dB प्लस AD क्या हो जाएगा, dB प्लस AD प्लस dB, ये पूरा हो जाएगा AB के बराबर। तो ये हो गया आपका AB और ये आपका आ गया AD, और EC प्लस AE हो जाएगा पूरा का पूरा AC के बराबर बाई AE। सो एनी डाउट? सो बच्चों आपके पास दोनों कवलरी आ चुके हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी एज पर द इक्वेशन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो बच्चों हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी करने वाले हैं। तो व्हाट डज द थ्योरम स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन जो डिवाइड कर रहा है, कोई भी लाइन जो डिवाइड कर रहा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को सेम रेशियो में, तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड के। मतलब बच्चा जस्ट उल्टा, पहले क्या था कि अगर कोई पैरेलल लाइन है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, और अभी क्या बोल रहा है कि अगर इक्वल रेशियो में कोई लाइन डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलो जल्दी से इसे देख लेते हैं हम एक बार। तो इसमें एक सेम चीज़ मुझे लिखना है अपना। दिस इज़ द गिवन पार्ट, एक लाइन L है, दिस इज़ द लाइन L जो कि कट कर रहा है AB को D पे और AC को E पे, और ऐसा कट कर रहा है कि रेशियो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC आ रहा है। ओके, अब आपको प्रूफ करना है DE जो है ये पैरेलल होना चाहिए BC के। तो ये होना चाहिए बट अभी है नहीं, तो बस मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अभी बच्चों यहाँ पे हमको देखना होगा, ऐसा जब भी प्रूफ आता है तो ऐसे प्रूफ में बच्चों एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपको लॉजिकली मानना पड़ता है। मान लो कि DE पैरेलल नहीं है, लेट DF be parallel to BC and not DE, ऐसा मान लिए। चलो, तो अभी बच्चों क्या हो जाएगा, जब DF पैरेलल है BC के तो हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं, या BPT के हिसाब से AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। BPT के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन भाई मेरे पास दिया क्या हुआ है, बट आई हैव बीन गिवन दिस कंडीशन, इसको इक्वेशन 2 बोलो स्टार्टिंग में। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि AE बाई, दिस इम्प्लाइज दैट AE बाई EC क्या हो जा रहा है, AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC। ओके, इसको बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हमको ऐसा मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसको आगे लेके प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों मेरे पास क्या आ गया, वहाँ पर AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, चलो एडिंग 1 कर देते हैं बोथ साइड्स में। तो AF बाई FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। ओके, तो जैसे प्लस वन करेंगे ये क्या हो जाएगा, AF प्लस FC बाई FC बन जाएगा ये, एंड दिस विल बिकम AE बाई AE प्लस EC बाई EC। ओके, अब AF प्लस FC क्या है, AF प्लस FC ये AC के बराबर है, और AE प्लस EC भी क्या है, ये भी AC के बराबर है। तो यहाँ भी लिखो AC बाई FC एंड दिस विल बी अगेन AC बाई EC। AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से क्या मिलेगा आपको, FC इज इक्वल टू EC।
अब बच्चा ये एफ सी का लेंथ ई सी के लेंथ के बराबर बोल रहा है, इसका मतलब क्या? सी पॉइंट तो कांस्टेंट है, ई पॉइंट फिक्स है, मतलब ई और एफ भी फिक्स होना चाहिए। मतलब क्या है कि ई, दिस इंप्लाइज दैट ई coincides with F और F coincides with E, तो दिस implies that जब ऐसा हो रहा है तो हम लोग का जो सपोजिशन है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्लियर? इसको जो मैं और क्लियर से लिख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ही चाइनीज़ कर दिया हूँ। सो दिस मीन्स दैट जब ऐसा हो रहा coincide, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दिस स्टेट्स दैट टी आपका पैरेलल हो जाएगा बीसी के। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो नॉर्मली कन्वर्स को अवॉइड किया जाता है एग्जाम में, बट तब भी बहुत सिंपल है बच्चों, कभी बोर्ड्स का कुछ ये नहीं है, इट्स नॉट वेरी श्योर, तो आप इसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ही जाना। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो कम टू द क्वेश्चंस, बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस लगाने से बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपका क्या दे दिया है इस क्वेश्चन में? ट्राइंगल एक दिया है ए बी सी, जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है, और आपको बोल दिया है पहला नंबर करने के लिए। तो पहला नंबर करने के लिए सिंपल, जब ऐसा कंडीशन दिया है तो आप जानते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आप लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? बाई बी पी टी, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ए डी बाई डी वी मतलब क्या? तो ए डी मतलब हो जाएगा आपका 3.6 एंड डी बी, तो डी बी तो यहाँ पे नहीं है बट आप निकाल सकते हैं, आपको ए बी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ए डी दिया हुआ है और ए बी भी दिया हुआ है, तो डी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डी बी विल बी इक्वल टू 10, दैट इज ए बी माइनस ए डी 3.6, यानी कि 4 एंड दिस विल कम 6.4। यहाँ पे 6.4 आप दे दीजिए, और ए ई आपको दिया हुआ है 4.5 एंड ई सी आपको पता नहीं है। तो ई सी आप यहाँ से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ई सी। तो ई सी विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 3.6। ओके, ये पॉइंट को हटाइए, तो यहाँ पर सबको क्या आ जाएगा? यू विल बी गेट। तो इसको सॉल्व जैसे करेंगे बच्चों हम लोग, ये इसी को जैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको कंप्यूट करेंगे हमको यहाँ पे आंसर्स आ जाएगा इसी का। तो इसी मिल गया बच्चों हमको। अब सिमिलरली बच्चों ए सी निकालना है, तो ए सी क्या हो जाएगा? आपको ए ई दिया हुआ है, ए ई प्लस ई सी कर देंगे, तो ए ई आपको गिवन है और ई सी यहाँ से मिल जाएगा, तो दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट उसी का पार्ट है। यहाँ पे बच्चों आपका रेशियो दे दिया है ए डी बाई डी बी का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं जब ऐसा कोई भी लाइन ऐसा देता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो थेल्स हम लोग लगा देते हैं। तो ए डी बाई सॉल्यूशन में ए डी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। एनी कन्फ्यूज़न? ये तो बाई बी पी टी है। ओके, तो जब बच्चों ये बाई बी पी टी हो गया आपका, तो अब हम लोग यहाँ पे आराम से, सॉरी इट इज़ ए डी बाई डी बी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है बच्चों, इट इज़ ए डी बाई डी बी, चलो, इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी बाई बी पी टी। अब मेरे को क्या निकालना है? देखो बच्चों यहाँ पे ए सी मेरे को दिया हुआ है, ओके, और हमको निकालना है ए ई का वैल्यू। तो हम मान लेते हैं लेट से ए सी का वैल्यू कितना है, लेट से ए ई का वैल्यू कितना है, लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो ई सी कितना आ जाएगा? तो ई सी का वैल्यू आ जाएगा ए सी माइनस ए ई। तो ए सी कितना है? 6.6 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे सब जगह का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ 4/7 पुट करेंगे
और AE की जगह क्या माने हैं x, और EC की जगह क्या है AC माइनस दिस 6.6 माइनस एक्स। सो बच्चों जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, सिंपल है, इट इज़ 4 इंटू 6.6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 26.4 माइनस 4x इज इक्वल टू 7x। और बच्चों यहाँ पर से क्या हो जाएगा 7x, 7 प्लस 4x इज इक्वल टू 26.4, दैट इज 11x 26.4। सो x विल बी इक्वल टू 26.4 बाई 11, तो ये बच्चों हो जाएगा 2.4। तो बच्चों यहाँ पर से x 2.4 आ गया, मतलब AE कम्स 2.4। सो बच्चों आप सिमिलरली अपना बाकी पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे ये CBSE 2011 एंड 13 में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फिगर दिया हुआ है आपको जिसमें AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC गिवन है, और एक चीज़ और दिया हुआ है ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB। आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, कभी भी गिवन पार्ट आप लिख लेना, क्या क्या दिया हुआ है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस ला सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि DE क्या हो जाएगा आपका, DE विल बी पैरेलल टू BC। कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT से हम बोल सकते हैं कि जब मेरा ये दिया हुआ है कंडीशन तो DE विल बी पैरेलल टू BC, मतलब यहाँ पे सिंपल भी लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC हो गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जब DE पैरेलल टू BC हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, जब ये पैरेलल है तो एंगल ADE विल बी इक्वल टू एंगल ABC। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको 1 बोल लीजिए या 2 बोल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB, ये तो आपके लिए गिवन है। तो इक्वेशन इसको 1 और 2 को कंपेयर करके हम क्या बोल सकते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर करके बहुत आराम से बोल सकते हैं, वी कैन ईजली से दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो जब एंगल ABC इक्वल हो गया ACB के, तो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इट इज प्रूव्ड। सो बच्चों देखा अपने क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एप्लीकेशंस को दिमाग में रखना है एंड यू विल फाइंड दैट the theorems are quite easy and applications also very easy. So last but not least I would like to conclude that कि बच्चों ये जो पढ़ाई है it is a gradual process, मैथ्स हो साइंस हो, तो वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस। हम लोग को डेली कुछ ना कुछ धीरे धीरे करते रहना पड़ेगा, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता। वी हैव टू गिव सम एफर्ट ऑन अ डेली बेसिस। सो आई वुड लाइक टू से if you find this video worthy, kindly like it, share it, subscribe and press the bell icon so that we can give you all the updates. And I would also urge the students that they can give their doubts in the comment, or they can also give their doubts in, this is my WhatsApp number, they can just WhatsApp me their doubts so that we as a team could definitely help them in this lockdown period. I also would like to announce that we are soon going to come with our science series very fast. Okay,
So no need to worry, we are going to give you the entire things so that you will be able to proceed in a very well and very good way. So good night, have a very wonderful day, have a very wonderful starting and beginning and practicing. So bye, take care.